जब वो रोज प्रभु भोज को लेने लगे, उस प्रकाशन के साथ कि वो क्या दर्शाता है। There are so many testimonies that happened here in this church when people started to take Holy Communion every day through that revelation. और दूसरा है अनॉइंटिंग ऑयल। And the second weapon is the anointing oil. आप खुद इस बात में रिसर्च कर सकते हैं। You can research on this. आप जानते हैं मसीह लोग पहले इतने बीमार नहीं थे। You know, believers कलीसिया में बीमारी नहीं थी। Believers earlier were not so sick. The church did not have sickness. That's why in James 5:14, look at the language. Is there any sick among you? याकूब में बीमार है? Healthy, there is no need for surgery. Amen. अब जानते हैं यहाँ पे हम कोई भी गवाही 1% एग्जैजरेट नहीं होती है। जो नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, जो हुआ है वो हुआ है। You know, we do not exaggerate any testimonies. What has happened, what has not happened. जड़ से नाश हो जाएगी ये। ओके, प्रकाश क्या है कि 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। And power was given to them over 1/4 of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. यूहन्ना प्रेरित ये दर्शन देख रहा है। John the apostle was seeing this vision. और वो क्या देख रहा है? वो उस राइडर को देख रहा है जो घोड़े पर सवार है, जिसका नाम मृत्यु है। He's seeing that rider who's seated on that horse whose name is death. और वो जो घोड़े पे सवार है उसको ये अधिकार दिया गया कि 1/4 लोगों को मार दे पृथ्वी के। The one who was on the horse was given authority to kill 1/4 of those who were on the earth. या तो तलवार से मार दे, Either by sword, या अकाल से मार दे, by famine, या महामारी से, बीमारियों से मार दे, by sicknesses, या जानवरों के द्वारा मार दे। or by beasts. अब ध्यान से सुनना। Now hear carefully. रेवलेशन आगे देखिए परमेश्वर क्या कहता है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीविते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनो। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. यानी जिनके सर पर परमेश्वर की मुहर है, इन चीजों का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। That means those who have the mark, the seal of God on their foreheads, these things have no authority over them. यानी अगर आपके सर पर आपके पिता की मुहर है, That means if your forehead has the mark, the seal of your father, you will not be touched. आपको छुआ भी नहीं जाएगा। You will not be touched. आपको छुआ भी नहीं जाएगा। I said you will not be touched. मैंने कहा आपको छुआ भी नहीं जाएगा इन चीजों के द्वारा। Amen. Let's see Ephesians 1:13. इफिसियों 1:13। In him you also trusted. Who is in him? That means in Jesus. जिसमें तुमने भी भरोसा किया। किस में? यीशु में। It talks about our union with the Lord. ये हमारा उसके साथ एक हो जाने को दर्शाता है। In him you also trusted after you heard the word of truth. जिस मसीह में तुमने भी विश्वास किया जब तुमने उस सत्य के संदेश को सुना, The gospel of your salvation. जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, In whom also, जिसमें having believed, विश्वास करके you
were sealed with the Holy Spirit of promise. तुम पर पवित्र आत्मा जो वायदे का आत्मा था उसकी छाप लगाई गई। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो जीवित परमेश्वर की छाप आपके ऊपर लगाई गई है। If you have received the Holy Spirit, the seal of the living God is upon you. ऊपर चलते हैं, क्या लिखा था? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। Until we put a seal on the foreheads of the servants of our God, do not harm the sea, the earth, the trees, anything. मैंने एक दिन एक स्वप्न में देखा और मैंने एक परमेश्वर के दास को देखा और उनकी ज्यादा बड़ी कलीसिया नहीं, एक छोटी सी कलीसिया, मगर इसका कलीसिया के साइज से कोई लेना देना नहीं है। I saw a man of God and his church is small, but this has nothing to do with the size of the church. और मेरे सामने वो खड़े हुए स्वप्न में और मैंने उनके यहाँ पे देखा जैसे गोद के लिखा हो, यहाँ पे लिखा था परमेश्वर का पुत्र। And I saw him in the dream, and there was an engraving on his forehead that read Son of God. जब वो घोड़े पे जो घुड़सवार मृत्यु है, जब वो आता है और आपकी तरफ जाता है, आपके सर पर वो छाप को देखता है, वो अपनी दिशा बदल देता है क्योंकि आपके माथे में आपके पिता की छाप को देखता है। When that rider whose name is death comes towards you and sees the seal of your father